فعل اور اس کی قسمیں۔ اردو قواعد میں آج ہم فعل اور اس کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ فعل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اس نے کیا، یعنی ماضی میں کام ہو چکا، جس میں کسی کام کا ہونا سمجھ میں آئے، جیسے کھانا، پینا، جانا وغیرہ، یہ سب فعل ہے۔ اردو میں فعل کے آخری میں اکثر نا آتا ہے۔ فعل کی قسمیں۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں: فعل متعدی، فعل لازم، فعل ناقص اور معاون فعل۔ فعل متعدی وہ فعل جس سے صرف فاعل سے بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ مثال: کامران آم کھاتا ہے۔ اس جملے میں کامران فاعل ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ کھانا ہے، کھاتا ہے، اور آم جو ہے وہ مفعول ہے۔ اسی طرح میں باہر گیا تھا، میں فاعل ہے، گیا تھا فعل ہے اور باہر مفعول ہے۔ میں کہانی لکھ رہا ہوں، یہاں پر میں فاعل ہے، لکھ رہا ہوں اس کا فعل ہے، کہانی ہے وہ مفعول ہے۔ فعل متعدی ٹرانسٹیٹیو ورب۔ فعل متعدی کی 2 قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف ایکٹیو وائس۔ فعل معروف وہ فعل جو اپنی نسبت اپنے فاعل سے جوڑے، وہ فعل معروف ہے۔ جیسے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، یہاں پہ فعل کی نسبت اپنے فاعل کے ساتھ ہے۔ فعل مجہول پیسو وائس۔ فعل مجہول وہ ہے جو فاعل کی بجائے مفعول سے نسبت جوڑے، وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے تاج محل شاہ جہاں کے ذریعے بنایا گیا، وہ اتارا گیا، وہ مارا گیا وغیرہ۔ فعل لازم انٹرانسٹیو ورب وہ فعل جس سے صرف فاعل سے بات پوری ہو۔ مثلا وہ دوڑتا ہے، میں کھاتا ہوں، لڑکی مسکرائی وغیرہ، یہاں پہ مفعول کا ذکر نہیں ہے۔ فعل ناقص انکمپلیٹ ورب وہ فعل جو پورا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے مزید کسی اور لفظ کا محتاج ہو۔ مثلا لڑکا خوش نظر آتا ہے، یہاں پہ لڑکا کس چیز سے خوش نظر آ رہا وہ پتہ نہیں چل رہا۔ بچہ ڈر کر رو رہا تھا، یہاں پر بچہ کس چیز سے ڈر کر رو رہا تھا اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ فعل ناقص کی مثال ہے۔ معاون فعل آکسیلری ورب وہ فعل جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر بات پوری کرے یا فعل اور فاعل کو جوڑ کر جملہ بنا دے۔ مثلا میں پونا گیا تھا، میں لکھ سکتا ہوں، اس میں تھا، سکتا، یہ معاون فعل ہے۔ متعلق فعل ایڈورب جب کسی فعل کے ساتھ اس کی صفت بھی بیان ہو یا کوئی ایسا لفظ جو فعل کی کیفیت بیان کرے اسے متعلق فعل کہتے ہیں۔ مثلا وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، اس جملے میں کام کی خاموشی سے ہونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ وہ میٹھے جامن کھا رہا تھا، اس جملے میں جامن کی صفت میٹھے بیان کی گئی ہے۔ فعل متعلق کی قسمیں۔ فعل متعلق کی 10 قسمیں ہیں جس میں کام کرنے کا وقت، جگہ اور عدد وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ متعلق فعل زمانی، متعلق فعل مکانی، متعلق فعل عددی، متعلق فعل طریقی، متعلق فعل مقداری، متعلق فعل اثباتی، متعلق فعل انکاری، متعلق فعل استفہامی، متعلق فعل موصلاتی، متعلق فعل سبب وغیرہ۔ متعلق فعل زمانی ایڈورب آف ٹائم۔ متعلق فعل زمانی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں آج، کل، پہلے، بعد میں، ابھی، اب تک، روزانہ، کبھی نہیں وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا وہ ابھی تک نہیں آیا، میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، پہلے کھانا کھاؤ وغیرہ۔ متعلق فعل مکانی ایڈورب آف پلیس۔ متعلق فعل مکانی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں، وہاں، اوپر، اندر، باہر، دور، نزدیک
वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन वो अंदर नहीं आया, मेरा घर दूर है, अनस की स्कूल नज़दीक है, बाहर सर्दी है, वहाँ बर्फ गिर रही है वगैरह। मुतालिक फ़ेल अददी, एडवर्ब ऑफ नंबर। मुतालिक फ़ेल अददी में किसी काम के करने या होने की तादाद मालूम होती है। इसमें एक बार, दोबारा, हमेशा, अक्सर, कभी कभार, कई बार वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मसलन वो अक्सर स्कूल आता है, मैं हमेशा बाग में जाता हूँ, उसने 2 बार खाना खाया वगैरह। मुतालिक फ़ेल तरीकी, एडवर्ब ऑफ मैनर। मुतालिक फ़ेल तरीकी में किसी काम के करने या होने की कैफियत या तरीके का पता चलता है। मसलन खामोशी से, नरमी से, बहादुरी के साथ, बड़ी मुश्किल से, तेजी से, चालाकी, बुज़दिली वगैरह। मसलन वो खामोशी से अंदर आया, मैंने बड़ी मुश्किल से सवाल हल किया, कामरान ने बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया वगैरह। मुतालिक फ़ेल मिक़दारी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मुतालिक फ़ेल मिक़दारी में किसी काम के करने या होने की मिक़दार का पता चलता है। इसमें बहुत, कम, ज़्यादा, पूरी तरह, तकरीबन, थोड़ा वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मिसाल, वो बहुत खेल रहा था, मैं ज़्यादा काम नहीं करता, उसने कम खाना खाया वगैरह। मुतालिक फ़ेल अज़बाती, एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन। मुतालिक फ़ेल अज़बाती में किसी काम के करने या होने के मज़बूत होने का यानी पूरा होने का पता चलता है। इसमें यकीनन, लाज़मन वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, मैं यकीनन कल दिल्ली जाऊंगा। मुतालिक फ़ेल इनकारी, नेगेटिव एडवर्ब। मुतालिक फ़ेल इनकारी में किसी काम के करने या होने के मुतालिक इनकार होता है, यानी काम पूरा नहीं होने का पता चलता है। इसमें ना, नहीं वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, मैं अनार नहीं खाता, मैं ये काम नहीं कर सकता, उसे गुस्सा नहीं आता। मुतालिक फ़ेल इस्तिफ़हामी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मुतालिक फ़ेल इस्तिफ़हामी में किसी काम के करने या होने के मुतालिक सवाल किया जाता है, जिससे काम करने के वक़्त होने का पता चलता है। मसलन, इसमें कहाँ, कब, किधर, क्यों, कितना वगैरह जैसे अल्फाज के इस्तेमाल होते हैं। मैंने कब तुमसे कहा, वो कहाँ चले गए, तुमने कितने रुपये अदा किए वगैरह। मुतालिक फ़ेल मौसलाती, रिलेटिव एडवर्ब। मुतालिक फ़ेल मौसलाती में किसी काम के करने या होने का पता 2 जुमलों से होता है, यानी ये 2 जुमलों को आपस में जोड़ देता है, जिससे काम का सबब, वक्त और जगह का पता चलता है। मिसाल, वो नहीं जानता इम्तिहान कब होने वाले हैं। क्या आपको मालूम है दीवारें चीन किसने बनाई? वो जान गया उसने नजरें क्यों फेर ली। यही वो जगह है जहां टीपू सुल्तान शहीद हुए वगैरह। मुतालिक फ़ेल सबब, एडवर्ब ऑफ रीज़न। मुतालिक फ़ेल सबब में किसी काम के करने या होने के मुतालिक सबब का पता चलता है या किसी काम के नतीजे के बारे में मालूमात हासिल होती है। मसलन, रज़िया ने रोटी बनाना सीखी, वो बहुत खुश हुई, लड़के को रस्सी पर चलता हुआ देखकर वो हैरत में पड़ गया वगैरह। ज़माना, फ़ेल किस ज़माने में हुआ ये उसको देखकर पता चलता है। ज़माने की 3 किस्में हैं, ज़माने माज़ी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल। उसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ज़माने माज़ी, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ज़माने माज़ी सग़े के लिहाज से मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम के लिए मैंने काम किया था, आई हैड वर्कड। मुखातिब के लिए तुमने काम किया था, यू वर्कड। थर्ड पर्सन गायब के लिए उसने काम किया था, ही हैड वर्कड। हालत के एतबार से ज़माने माज़ी की 4 किस्में हैं। फ़ेल माज़ी की 4 किस्में। ज़माने माज़ी सादा,
सिंपल पास्ट टेंस, ज़माना माजी जारी पास्ट कंटिन्यू टेंस, ज़माना माजी मुकम्मल पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माना माजी इस्तमरारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ज़माना माजी सादा की मिसाल, मैंने खाना खाया जैसे काम अभी अभी माजी में हो गया है। ज़माना माजी जारी के लिए मैं खाना खा रहा था, यानी माजी में वो काम जारी था। ज़माना माजी मुकम्मल के लिए मैं खाना खा चुका था, यानी ज़माना माजी में काम मुकम्मल हुआ। इसमें खा चुका था, नहा चुका था, जा चुका था, इस तरह के वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ज़माना माजी इस्तमरारी, मैं आधे घंटे से खाना खा रहा था। इसमें माजी में कुछ वक्फे से काम हो रहा है, इस बात का पता चलता है। इंग्लिश में वॉज, हैड बीन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, सगे में मुत्तकलिम फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने काम किया आई डू, सेकंड पर्सन मुखातिब के लिए तुमने काम किया यू डू, थर्ड पर्सन गायब के लिए उसने काम किया ही डू। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, हालत के लिहाज से ज़माने हाल की 4 किस्में हैं। ज़माने हाल सादा, ज़माने हाल जारी, ज़माने हाल मुकम्मल, ज़माने हाल इस्तमरारी। ज़माने हाल सादा की मिसाल, सारा खाना खाती है। ज़माने हाल जारी, सारा खाना खा रही है। ज़माने हाल मुकम्मल, सारा खाना खा चुकी। ज़माने हाल इस्तमरारी, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसमें है, कर रही है, चुकी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में एम, इज, आर, हैज, हैव बीन वगैरह। ज़माना मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, सगे के लिहाज से फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम मैं करूँगा आई विल डू, सेकंड पर्सन मुखातिब तुम करोगे यू विल डू, थर्ड पर्सन गायब वो करेगा ही विल डू। फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल, हालत के लिहाज से ज़माना मुस्तकबिल की 4 किस्में हैं। ज़माना मुस्तकबिल सादा, सारा खाना खाएगी। ज़माना मुस्तकबिल जारी, सारा खाना खा रही होगी। ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल, सारा बाजार जा चुकी होगी। ज़माना मुस्तकबिल इस्तमरारी, सारा आधे घंटे से खाना खा रही होगी। इसमें गा, गी होगा, चुकी होगी, रही होगी, और अंग्रेजी में विल बी, विल हैव बीन जैसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। फेलिया जुमला, फेलिया जुमले के 3 अज्जा है। फाइल, मसनद अलैह को फाइल कहते हैं। मफूल, मसनद को मफूल कहते हैं। फेल ताम, आखिर में आने वाले फेल को फेल ताम कहते हैं। फेलिया जुमले की मिसाल, जाकिर ने किताब पढ़ी। जाकिर फाइल है, किताब मफूल है, पढ़ी फेल ताम। खावर ने गाना गाया। खावर फाइल, गाना मफूल, फेल ताम गाया। अरशद ने खाना खाया। अरशद फाइल, खाना मफूल, खाया फेल ताम। इसमें फाइल सब्जेक्ट, जुमला जाकिर ने किताब पढ़ी। इस जुमले में जाकिर जो है ये फाइल है, यानी पढ़ने वाला। खावर ने गाना गाया, इस जुमले में खावर फाइल है, यानी गाना गाने वाला। अरशद ने खाना बनाया, इस जुमले में अरशद खाना बनाने वाला यानी फाइल है। इसमें मफूल यानी ऑब्जेक्ट जिसके जरिए काम होता है, जैसे जाकिर ने किताब पढ़ी, यहाँ पे किताब मफूल है, किताब के जरिए पढ़ने का काम हुआ। खावर ने गाना गाया, यहाँ पे मफूल गाना है, गाने का काम खावर ने गाने के जरिए किया। अरशद ने खाना बनाया, यहाँ पर खाना मफूल है जिसको बनाने का काम हुआ है। फेल माजी के अरबी के कुछ मजदर जो वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में उससे बनने वाले फाइल और मफूल। फ़अल उसने किया, फाइल मफूल। नसर उसने मदद की, नासिर मंसूर। कतल उसने कत्ल किया, कातिल मकतूल। फतह उसने खोल दिया, फातिह मफतूह। रफ़ा उसने बुलंद किया, राफ़े मरफू। सहर उसने जादू किया, साहिर मसहूर। शकर उसने शुक्र किया, शाकिर मशकूर। कतब
اس نے لکھا کاتب مکتوب، خلق اس نے پیدا کیا، خالق مخلوق، ذکر اس نے یاد کیا، ذاکر مذکور، سجد اس نے سجدہ کیا، ساجد مسجود، طلب اس نے مانگا، طالب مطلوب، نظر اس نے دیکھا، ناظر منظور، جمع اس نے جمع کیا، جامع مجموع۔